Viral diseases are the diseases which are caused by viruses. Viral diseases are very difficult to cure. In this video, we are going to study about three most common viral diseases, that is common cold, dengue and chikungunya. The first viral disease is common cold. It is caused by the virus named rhinovirus. This is the important point, hence it is the start point. You have to remember this. Rhinovirus appears like this. This diagram is only for your knowledge. This is not important for the examination, but the name of pathogen is very important. Hence you must remember the name. मोड ऑफ इन्फेक्शन. कॉमन कोल्ड ये जो डिसीज़ है ये किस तरह से स्प्रेड होता है. इट इज़ एयरबोर्न डिसीज, मीन्स these viruses they are transmitted through the air. It is due to the droplet transmission, means these pathogens they are released along with the droplets which are released from the patient while speaking, coughing or sneezing. The transmission may be due to the contaminated objects like books, pens, doorknobs, cups, computer keyboards and mouse, etc. इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है. सिम्टम्स: excessive nasal secretion. Common cold is the infection of upper respiratory tract like nose and pharynx, and due to the presence of these viruses, the mucus cells in the lining of nasal cavity or pharynx they secrete excess mucus. Headache and cough, congestion of nose. Sometimes this mucus it becomes more thicker, and that's why the congestion of nose occurs. Low grade fever. Another symptom is sore throat and hoarseness, यानी गले में खिचखिच होना और hoarseness इन साउंड का टोन चेंज होना, इसे कहते हैं hoarseness. एंड टायर्डनेस मीन्स थकान आना. ट्रीटमेंट: देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगेंस्ट द कॉमन कोल्ड, hence prevention is more important. The symptoms of common cold they resolve automatically after 3 to 7 days. अगर हम कोई मेडिसिन नहीं भी लेंगे तो 3 से 7 दिनों के अंदर ये जो सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के ये अपने आप चले जाएंगे. प्रिवेंशन: अवॉइड क्लोज कांटेक्ट. जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास जाना हमें अवॉइड करना चाहिए. कवर नोज एंड माउथ. जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये डिसीज़ को स्प्रेड करता है, इसलिए
कफिंग के टाइम या स्नीजिंग के टाइम उस व्यक्ति ने अपने नोज़ और माउथ को कवर कर लेना चाहिए। वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर और हैंड सैनिटाइज़र। रेगुलरली हमें सोप और पानी के साथ या हैंड सैनिटाइजर के ज़रिए हाथ साफ करने चाहिए। These preventive measures, these are displayed here in this poster, and now you are familiar with these preventive measures with respect to the COVID-19. Same preventive measures are for the common cold, means use of mask, avoid close contact, social distancing, washing of hands with soap or disinfectant, etc. Next diseases are dengue and chikungunya. Dengue is caused by the flavivirus. This is also the important point. The causative pathogen for chikungunya is alpha virus. इसे भी मैं स्टार करके दे रहा हूँ। दोनों नेम्स कॉजेटिव पैथोजेंस के आपको रिमेंबर करने हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये जो दोनों डिसीज़ हैं डेंगू और चिकुनगुनिया, ये किस तरह से स्प्रेड होते हैं। दीज आर वेक्टर बोर्न डिसीज़, ये वेक्टर्स के जरिए स्प्रेड होते हैं। मॉस्किटो एडिस एजिप्सी is the vector for these viruses. ये जो वायरस है फ्लेविवायरस और अल्फा वायरस, ये दोनों टाइप के वायरस एडिस एजिप्सी इस मॉस्किटो के अंदर रहते हैं, और जब ये मॉस्किटो हमें काटता है तब ये वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। Virus is transmitted from infected person to susceptible person through mosquito bite. ये जो एडिस इजिप्सी मॉस्किटो होता है, ये इस तरह से दिखता है। उसके शरीर के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं। हम इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Symptoms. Most of the symptoms of dengue and chikungunya are similar. Fever, muscle pains, joint pains, nausea and vomiting. Nausea means the feeling of vomiting. Vomiting के पहले जो वोमिटिंग करने की फीलिंग आती है उसे नाउजिया कहते हैं। हेडेक एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम्स एंड माउथ। इन सम केसेस सच टाइप ऑफ हेमोरेज कैन बी ऑब्जर्व, यानी नोज, गम्स और माउथ में ब्लीडिंग होना, खून आना। ट्रीटमेंट, ये भी वायरल डिसीज़ है दोनों, इसलिए इनके अगेंस्ट भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू एंड चिकुनगुनिया, पेन किलर्स आर जनरली यूज्ड एंड द रेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर एक वायरल डिसीज़ में रेस्ट ये बहुत ज़रूरी होती है।
प्रिवेंशन, ये डिसीज़ हमें ना होने, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज destroy breeding places of mosquitoes because this is the mosquito borne disease. Aedes aegypti mosquitoes are the vectors for these viruses which cause डेंगू एंड चिकुनगुनिया। अगर हम इन मॉस्किटोज़ की जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, जहाँ पर ये मॉस्किटोज़ रिप्रोड्यूस करते हैं, उन जगह को ही हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो मस्किटोज़ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और ये बीमारियां हमें नहीं होगी। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, सोते समय मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना। यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मार्केट में बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनकी वजह से मॉस्किटोज़ हमारे घरों में प्रवेश नहीं करेंगे। यूज़ ऑफ वायर नेट्स टू विंडोज़ एंड डोर्स, विंडोज़ और डोर्स पर हम अगर वायर नेट्स लगाएंगे, जाली लगाएंगे, तो उससे भी घर में मॉस्किटो का आना प्रतिबंधित हो जाएगा। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, कुछ इंसेक्टिसाइड्स कीटकनाशक स्प्रे करने से भी मॉस्किटो की संख्या कम होती है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ कूलर्स, कूलर्स में जो पानी हम रखते हैं उस पानी में इन मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग हो सकती है, इसलिए कूलर्स का रेगुलर क्लीनिंग करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन डिसीज़ को प्रिवेंट करने में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज introduce Gambusia fish in ponds which feed on the mosquito larvae. It is the measure from biological control. ये जो फिश है गैम्बूशिया फिश, ये फिश मॉस्किटो की जो लार्वी रहती है उसको खाते हैं। अगर हम पॉन्ड्स में ये फिश इंट्रोड्यूस करेंगे तो उन पॉइंट्स में मॉस्किटोज़ की संख्या नहीं बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली इन डिसीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।